हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। हाउ आर यू? कैसे हैं सभी बच्चे? बंटी, नमन गौतम, मोहित, नवल किशोर, राहुल मीना, रितिका यादव, सुमेर सिंह, अनुज सिंह, साक्षी यादव, कनिष्क, अनुष्का, तन्वी, मोनिका। बिल्कुल ठीक हूँ बेटा मैं भी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। And today I am going to teach you English grammar, and in English grammar we were studying about the second chapter and that is the sentence. कल हमने sentence के बारे में जाना था, definition of the sentence and features of the sentence and parts of a sentence. Sentence के last हमने two parts study किए थे. First is predicate and first is subject and second is predicate. सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था, whom we talk about, जिसके भी बारे में हम बात करते हैं इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसके भी बारे में बात की जाती है सेंटेंस में वही कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट द प्रेडिकेट। व्हाट इज प्रेडिकेट? Our topic is sentence. There are two parts of sentence. There are two parts of a sentence. First is subject and second is predicate. And today we will know about the predicate. What is the predicate? So what is the predicate? Predicate क्या होता है? The part of a sentence, the part of a sentence which tells something about the subject is called predicate. The part of a sentence का वो part which tells, जो बताता है something कुछ about the subject के बारे में। अभी हमने सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था सब्जेक्ट, सेकंड हम पढ़ रहे हैं प्रेडिकेट। तो इस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वही क्या होता है बच्चों? प्रेडिकेट होता है। सी द एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, birds are flying. Birds are flying in the sky.
in the sky. Birds are flying in the sky. See, whom we are talking about here. किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है? Whom are we talking about here? किसके बारे में बात हो रही है? आसमान में कौन उड़ रहा है? Birds. Birds की बात हो रही है. So bird is subject here. Bird क्या हुआ? Subject हो गया. अब सब्जेक्ट के बारे में, इस बर्ड के बारे में क्या कहा जा रहा है? What are we saying about the subject? That they are flying in the sky. यही कहा जा रहा है ना कि वो आसमान में उड़ रहे हैं. So are flying in the sky. ये पूरी बात हमने इस बर्ड के बारे में कही है. So this is the predicate. This is the predicate. So स्टूडेंट्स आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट हमने सर्च कर लिया है कि ये हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद में जो पूरा सेंटेंस है वो प्रेडिकेट होता है, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो पूरा का पूरा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है. सो दिस इज द सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग सेंटेंस इज प्रेडिकेट. Have you understood? समझ आ गया सभी बच्चों को? समझ आ गया? So I'm giving you some sentences and you will find out what is the subject and what is the predicate there. Have you written this? Have you noted? Noted all of you? Sumesh Singh, Vishal, Deepshika, Kanishk, Mohit, written beta? No? So right. Written now? Have you written? चलिए. So I'm writing here some sentences. Those are I'm taking from your exercise on page number 10. पेज नंबर 10 पर एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें यही पूछा गया है कि आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है. सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है कि विच इज द सब्जेक्ट एंड विच इज द प्रेडिकेट. तो बिल्कुल हम इस एक्सरसाइज को अभी सॉल्व कर लेने वाले हैं. हमारी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाएगी और साथ में हमें समझ में भी आ जाएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. So I'm writing here some sentences. So you will find out the subject and predicate there. So your first sentence is identify subject and predicate. And our first sentence is barking dogs seldom bite. Second one is the President of India
President of India hoisted the flag. Hoisted the flag. A black cat was running after a mouse. A black cat was running after mouse. Mouse. The man standing in the corner the man standing in the corner is a thief. The boy wearing a green shirt is my friend. चलिए बेटा अब फटाफट से आंसर करना शुरू कीजिए। बताइए फटाफट से। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। साक्षी, दीपिका आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, आंसर कीजिए फटाफट से सभी बच्चे। फर्स्ट सेंटेंस के लिए हम आंसर फर्स्ट सेंटेंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस के लिए आंसर कीजिए। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। नमन इज गिविंग द आंसर बार्किंग डॉग। बार्किंग डॉग। Second, the President of India hoisted the flag. What is the subject here? Second में subject बताइए। अनुष्का, dogs, the President, the man. 5. The boy wearing a green shirt is my friend. चलिए देखिए, The barking dog seldom bite. यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है? बार्किंग डॉग्स के बारे में बात हो रही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होइस्टेड द फ्लैग। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है। अ ब्लैक कैट वाज रनिंग आफ्टर अ माउस। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एक ब्लैक कैट की बात हो रही है। द मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज अ थीफ। यहाँ किसकी बात हो रही है? उस आदमी की बात हो रही है जो कॉर्नर में खड़ा है। So the man standing in the corner is a thief. The boy wearing a green shirt is my friend. Green shirt पहने हुए लड़का, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? वो लड़का जिसने ग्रीन शर्ट पहन रखी है वो क्या है? Is my friend। ऐसे
द कॉर्नर इज अ थीफ, वो एक चोर है। ठीक है, और बचा हुआ सेंटेंस जो है प्रेडिकेट है। आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बताया गया था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बताया गया था, यही बताया था ना। तो देखो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। ठीक है, तो देखिए, द बॉय वॉज वियरिंग अ ग्रीन शर्ट इज माई फ्रेंड। समझे? अंडरस्टूड बेटा? समझ में आ गया? रितिका, युगान, तन्वी, अनुज, राहुल, नवल, नमन, विशाल, दीपशिखा, साक्षी, तनिष, समझ में आ गया बच्चों? मोहित, आ गया समझ में? हाँ, अब कंफ्यूज तो नहीं होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेकर के। सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको बच्चों हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लिखी हुई मिलेगी। तो जहां पर आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है तब तक का वो पूरा सब्जेक्ट में ही काउंट होता है। ठीक है, ओके। तो ये हमारे सब्जेक्ट हुए और बचा हुआ क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। चलिए, नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट देखो, हमने सेंटेंस की डेफिनेशन को क्लियर किया, उसके बाद में हमने जो है फीचर्स ऑफ सेंटेंस जाने, सेंटेंस के फीचर्स क्या है ये जान लिया। इसके बाद में हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को भी जान लिया है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब हम जानेंगे कि सेंटेंस होते कितने तरह के। ये तो हमने इसके पार्ट जाने हैं। सेंटेंस के पार्ट और काइंड दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, सेंटेंस होते हैं कितने तरह के सेंटेंस होते हैं। किसी भी बात को जब हम बोलते हैं, जब हम कोई सेंटेंस यूज करते हैं तो जरूरी नहीं हम किसी बात को पॉजिटिव वे में बोलेंगे कि हम इस काम को करते हैं, हम किसी काम को नहीं भी करते हैं, किसी से पूछ भी लेते हैं कि क्या हम ऐसा करते हैं, है ना। या फिर कई बार ऐसा बोला जाता है कि जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, है ना। तो बहुत तरह के सेंटेंस जो है हम यूज करते हैं। तो सेंटेंस कितने तरह के होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज काइंड ऑफ सेंटेंस। Kinds of sentence. Kinds of a sentence. So how many kinds of sentence? So there are 5 kinds of sentence. Sentence 5 तरह के होते हैं. There are 5 kinds of sentences. There are 5 kinds of sentence.
First is assertive sentence. Assertive sentence. Second is interrogative. Interrogative sentence. Third is imperative sentence. Fourth is optative sentence. And five is exclamatory sentence. See, there are 5 kinds of sentence, which first is assertive sentence, second one is interrogative sentence, third is imperative sentence, fourth is optative sentence, and 5 number is exclamatory sentence. वेल गुड, फटाफट से नोट करेंगे. आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट असर्टिव सेंटेंस. असर्टिव सेंटेंस होते क्या है उनके बारे में स्टडी करेंगे. तो पहले सभी बच्चे अच्छे से नोट कर लीजिए 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. वेरी गुड, नोट हो गया है. असर्टिव सेंटेंस बोल करके नोट करें, क्योंकि बोलकर लिखते हैं तब आधा तो आपको साथ के साथ ही लर्न हो जाता है. असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी. Now we will know which sentences are related from assertive sentence. Assertive sentence से related sentences के बारे में जानेंगे कि assertive sentence क्या होता है. Written बेटा, चलिए अब देखिए असर्टिव सेंटेंस को. असर्टिव सेंटेंस, द सेंटेंस which states or declares something something is called an assertive or declarative सेंटेंस. बेटा असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है. जहां कुछ डिक्लेयर किया जाता है, जहां कुछ स्टेट किया जाता है, यानी कि सीधा किसी बात को बताया जाता है कि ऐसा है या नहीं है, किसी के भी बारे में कुछ है या नहीं है, सीधा स्टेटमेंट दिया जाता है, तो वही जो स्टेटमेंट होता है वो असर्टिव सेंटेंस होता है. असर्टिव सेंटेंस में पॉजिटिव और
नेगेटिव दोनों ही सेंटेंस शामिल होते हैं। किसी के बारे में कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। So assertive sentence are those sentence which states or declares something is called assertive or declarative sentence। उसे ही assertive या declarative sentence कहा जाता है। अब इसके अंदर शामिल कर लेंगे हम कि जो assertive sentence है either makes an affirmative or a negative statement। assertive sentence जो होता है वो या तो पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है या नेगेटिव स्टेटमेंट देता है। तो बिल्कुल हम इस बात को नोट कर लेंगे। एंड assertive sentence either makes a positive or negative statement। ये पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी स्टेटमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट ही हो, ठीक है। और इसके बारे में एक खास बात है कि जो असर्टिव सेंटेंस है उनका एंड हमेशा फुल स्टॉप से होता है। एंड असर्टिव सेंटेंस always ends with full stop। हमेशा ही फुल स्टॉप से इनका एंड होता है। एन असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से एंड होता है और असर्टिव सेंटेंस या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है, चाहे तो उसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया हुआ हो या फिर उसमें नेगेटिव स्टेटमेंट भी हो सकता है। नाउ एग्जाम्पल ले लेते हैं। I'm writing examples here। यहाँ लिख देती हूँ एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल इधर से नोट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल राम is playing। राम खेल रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि राम खेल रहा है, उसके बारे में बताया है कि राम खेल रहा है। ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया है ना, असर्टिव हो गया। और राम इज नॉट प्लेइंग, राम नहीं खेल रहा है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। राम इज प्लेइंग ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया और राम इज नॉट प्लेइंग ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आज के लिए इतना ही। इन होमवर्क व्हाट विल यू डू? You will write the parts of sentence and kinds of the sentence, and the first kind of sentence, assertive sentence, and you will learn also. So we will meet tomorrow in next class. Thank you. Bye. Have a nice day.